الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سے پہلے میں نے 3 ویڈیو میں آپ لوگوں کو حروف طرفیہ تک کا مخرج بتا دیا ہے۔ آج ہم مخرج کا اگلا سبق حروف نطعیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو 3 مخارج کے بارے میں بتاؤں گا، 4 مخارج کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلا ہے حروف نطعیہ، دوسرا ہے حروف لیساویہ، اور تیسرا ہے حروف صفیریہ، اور چوتھا ہے حروف شفویہ۔ ان چاروں مخارج کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں حروف طرفیہ کے بارے میں، حروف نطعیہ کے بارے میں حروف نطعیہ کے بارے میں آج میں سب سے پہلے بتا رہا ہوں۔ حروف نطعیہ کس کو کہتے ہیں اور اس کا مخرج کیا ہے؟ تو دال اور تا، ان تینوں حروف کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک، مان لیجئے یہ ہماری زبان ہے، تو زبان کی نوک یہ والا حصہ ہوگا، یہ یعنی کہ یہ جو ہے ہماری زبان کی نوک ہے۔ اور اوپر کے دانتوں کی جڑ، جو اوپر کا ہمارا دانت ہے، اوپر کا جو دانت ہے اس کے جو پیچھے یعنی اس سائڈ میں جو جڑ ہے وہاں سے، یعنی زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ میں ہم لگائیں گے تو ادا ہوگا تو دال اور تا۔ مگر یہ جو تا ہے، تو تا جو ہوتا ہے، یہ جو تا ہے اس کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ۔ یہ حروف مستعلیہ ہے، ہر حالت میں پر ہوتا ہے، لہذا جب اس کو ہم ادا کریں گے تو پر کر کے ادا کریں گے۔ پر کا مطلب ہے کہ زبان بھر، منہ بھر کی آواز آنی چاہیے، منہ بھر کی آواز آنی چاہیے۔ منہ بھر کی آواز لانے کا طریقہ یہ ہے کہ منہ بھر کی آواز کیسے ہم بنائیں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کو ہم تالو کی طرف جب ہم اٹھائیں گے نا تو حروف پر ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی حروف کو پر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم زبان کو تالو کی طرف اٹھائیں گے، تو جو اس کا مخرج ہے وہاں پر سب سے پہلے ہم لگائیں گے، یعنی کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے، زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگائیں گے، اور لگانے کے بعد جو ہے تو جب ہم کہیں گے تو زبان کو تالو کی طرف اٹھا دیں گے، تو یہ حروف ہمارا پر ہو جائے گا۔ اور دال اور جو دوسرا والا جو تا ہے، با کے بعد جو تا آتا ہے اس کو ہم کو باریک کرنا ہے۔ تو یہ ہوا حروف نطعیہ، تو دال تا۔ اس کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا مخرج ہے وا ذال تا۔ ان حروفوں کو حروف لیساویہ کہتے ہیں۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا سیرا، دیکھیے یہ جو مان لیجیے اس کو ہم زبان مانتے ہیں، تو اس کا زبان کا سیرا یہاں پر ہوتا ہے، یہاں یہ زبان کا سیرا ہے۔ زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے جاتے ہیں۔ جو اوپر کا ہمارا دانت ہے اس کا جو اندر طرف کا کنارہ ہے، اندر طرف کا کنارہ، وہاں سے ہمارا زبان کا سیرا لگے گا، یعنی یہ ہمارا زبان کا سیرا ہے۔ اور یہ ہمارا، اس کو میں اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ یہ ہمارا جو ہے، یہ ہماری جو ہے زبان ہے، اور زبان کا سیرا یہ ہے۔ تو یہ جو ہے اوپر کا دانت ہے، تو اوپر کا دانت کا اندرونی کنارہ اس کو ہم کہیں گے۔ تو یہاں پر زبان کا سیرا اور اندرونی کنارہ، اوپر کے دانت کا اندرونی کنارہ جب لگے گا تو ادا ہوگا وا ذال اور ثا۔ لیکن جو وا ہے یہ بھی حروف مستعلیہ ہے، یہ بھی ہر حالت میں اس کو بھی پر کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، تفخیم کر کے پڑھا جاتا ہے۔ لہذا اس کو جب ہم ادا کریں گے تو منہ بھر کی آواز آئے گی، اس طرح سے ہم اس کو ادا کریں گے۔ اور ذال اور ذا اس کو بالکل ہلکی آواز میں اور باریک کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو یہ جو حروف لیساویہ ہے اس کا مخرج ہم نے پڑھا زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ہمارا اگلا مخرج ہے حروف صفیریہ کا۔
इसमें कौन कौन से हरूफ हैं? सौद, जा और सीन। ये सौद जो है ये भी हुरूफ मुस्तालिया है, इसे भी हर हालत में पुर करके पढ़ा जाता है। हुरूफ मुस्तालिया के बारे में मैं अभी इस ये जो मखरज पूरे हमारे हो जाएंगे, मखारिज का सबक जब पूरा हो जाएगा तो अगली वीडियो में हम बताएंगे हुरूफ मुस्तालिया के बारे में कौन कौन से और कौन कौन से, उसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा। अभी हम जो है मखरज पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि जो सौद है ये भी हुरूफ मुस्तालिया है, ये भी हर हालत में पुर करके पढ़ा जाता है। तो जब हम सौद कहेंगे, मखरज तो इसका ये है कि जबान की नोक ये जो है ना, ये जबान की नोक है, ये जबान की नोक है, जबान की नोक, और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। दोनों दांतों का मतलब है कि ऊपर के दांत और नीचे के दांत। उसको ये देखिए कि ये हमारा ऊपर का दांत है और ये हमारा नीचे का दांत है। ये दोनों दांत जब आपस में मिलेंगे तो उसके पीछे हमारी जबान की ये जो नोक है वो मिलेगी। तो जबान की नोक को हम दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से जब लगाएंगे तो अदा होगा सौद। सौद को हम हर हालत में पूरी यानी तफखीम करके पढ़ेंगे। और इसके बाद है जा और सीन, क्योंकि यह हुरूफ सफीरिया यानी इसकी सीटी की तरह आवाज आती है, तो सौद, जा और सीन, इस तरह से हम इसको अदा करेंगे। इसका मखरज फिर से सुन लीजिए क्या है? जबान की नोक, जबान की नोक और दोनों दांतों का मतलब है ऊपर और नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। ये जो जबान दोनों दांतों की इस तरह से मिलाएंगे, उसके पीछे हम जबान को मिलाएंगे, यानी कि जबान का दांत में लगना जरूरी है, तभी हमारा सौद, जा और सीन अदा होगा। ये तो हुआ हुरूफ सफेरिया के बारे में, मैंने इसका मखरज बताया। अब जो है आते हैं अगला मखरज हुरूफ शफविया के बारे में। चूंकि ये फा जो है हुरूफ शफविया है, ये होंठ से अदा होते हैं। अब ये जो है हुरूफ सफीरिया तक जितने हुरूफ जो हमने पिछले पढ़ा था हुरूफ हलकिया के बाद, वो सारे हुरूफ जो है हुरूफ लिसानी हुरूफ थे, यानी जबान से अदा होते थे। अब हम जो शफवी मखरज की तरफ आते हैं, यानी कि फा, शफी मखरज। अब जो फा के आगे जो हमारा मखरज आएगा वो जो है जबान से अदा नहीं होगा बल्कि होंठों से अदा होगा। तो होंठों से अदा होगा, इसीलिए इस हुरूफ को ये जो होंठों से अदा होते हैं उन हुरूफ को हुरूफ शफविया कहते हैं। तो हुरूफ शफिया और हैं जिसमें से सिर्फ फा को आज हम पढ़ रहे हैं। अगला वीडियो में फिर मैं बताऊंगा और हुरूफ शफविया क्या है और उसके मखारिज क्या है। आज के वीडियो में मैं फा तक का मखरज ही बताऊंगा। तो फा जो हुरूफ शफविया है, जो हुरूफ शफविया में आता है, फा हरफ शफिया, इसका मखरज क्या और ये अदा कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मखरज को देखिए, इसके बाद फिर समझाता हूँ। फा हुरूफ शफविया में फा आता है। ऊपर के दांतों के किनारे, ऊपर जो ये सनाया दांत है, ऊपर का दांत है, उसका किनारा, जैसे मैंने आपने बताया कि ऊपर का दांत है तो किनारा उसका ये है, ऊपर के दांतों का किनारा ये है। ये ऊपर का दांत अगर इसको हम मान लेते हैं तो ऊपर के दांतों का किनारा ये है। तो ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठों के तर हिस्से से, निचले होंठ के तर हिस्से से अदा होता है। निचला होंठ, ये जो हमारे नीचे का होंठ है, इसका जो तर हिस्सा का मतलब ये है, जैसे हम जबान को बिल्कुल मुंह को जब बंद करके जब खामोश होते हैं तो जो होंठ का वो हिस्सा जो हमेशा गीला रहता है, जो हमेशा गीला रहता है लुआब से, यानी जिसको हम अपनी भाषा में थूक बोलते हैं, उससे जो होंठ का हिस्सा गीला रहता है उसी को कहते हैं होंठ का तर हिस्सा। तो इसको जो है ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से लगाएंगे, ऊपर के दांतों के किनारे को निचले होंठ के तर हिस्से से लगाएंगे तो अदा होगा फा। याद रखें कि फा अदा करने में ऊपर का दांत और नीचे का होंठ मिलेगा, ऊपर का होंठ और नीचे का होंठ नहीं मिलेगा। अगर ऊपर का होंठ और नीचे का होंठ दोनों होंठों को हम मिला देंगे तो फा अदा नहीं होगा बल्कि फा होगा, जो कि उर्दू में आता है। फ फूल फल, जो हम कहते हैं पे में हे मिला के फ बनता है, और पे में हे मिला प, और फ जो होता है पे में हे मिला के फ बनता है।
वो ये नहीं है। जब जब हम कहते हैं तो दोनों होंठ मिलता है, ये दोनों होंठ मिलते हैं आपस में, तो हमको नहीं बोलना है बल्कि बोलना है, यानी कि ऊपर के दांतों का किनारा और निचले होंठ के तर हिस्से से मिलाएंगे तो अदा होगा। तो ये हुआ आज हमारा मखरज, दाल ता, दाल ता, सोद जा सीन और फा। ये सारे मखारिज हमने बताया। इससे पहले भी मैंने और दूसरे हुरूफ के मखारिज बताए हैं, उनका भी वीडियो देखें और इसका भी वीडियो देखें, तब आपको समझ में आएगा एक एक करके हुरूफ के कौन से मखारिज हैं और कैसे अदा होते हैं। मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर हम हुरूफ शफविया के बारे में आगे हम बताएंगे। आज का हमारा मखरज यहीं तक रहेगा, हमारा सबक यहीं तक रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, समझिए, और अगर आपके अल्फाज और हुरूफ दुरुस्त नहीं हैं तो कुरान पाक के अल्फाज और हुरूफ को दुरुस्त कीजिए, ताकि आपको कुरान पाक पढ़ने का पूरा पूरा सवाब मिल सके। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्फाज हुरूफ हमारे दुरुस्त नहीं होते हैं, जिससे अल्फाज हमारे दुरुस्त नहीं निकलते हैं, और अल्फाज दुरुस्त ना होने की वजह से कभी कभी माना भी फासिद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी नमाज भी बर्बाद हो जाती है। लिहाजा हम नमाज पढ़ते हैं मेहनत के साथ, हम वक्त निकालते हैं नमाज पढ़ते हैं, तो मेहनत के साथ ये भी सीखिए आप, और दुरुस्त जो है हुरूफ को अदा करके और अल्फाज को अदा करके कुरान पाक की सही तिलावत करके नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें जो है पूरा पूरा सवाब मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखिए, अपने दोस्तों को भी जो है इस तरह मुतवज्जो दिलाइए और अपने अल्फाज को दुरुस्त कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।